Welcome students. Today we are going to start with the structural organization of cell, and in this section we are going to study about the organelles cell is made up of. Okay, first we must know that every cell is a microscopic unit, and every cell is made up of plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Okay, plant cells have cell wall in addition to these components. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज देयर, बट विद सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल इज ऑल्सो देयर इन plants. Now we will start with plasma membrane in detail. It is also known as cell membrane or outer covering of the cell. Outermost covering of the cell जो सेल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. Now plasma membrane is discovered by the scientist C. Nogeli, Nogeli. Okay, it's C. Nogeli and C. Kramer, Kramer in 1855. Now it is the outermost covering of the cell, except plant cell, that separate the content of the cell from its external environment. It allows the entry and exit of some material in it and out of the cell. Main function is entry and exit of material. कुछ चीज़ें इसके अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें इससे बाहर निकल रही हैं सेल से, तो वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती हैं. Now it also prevent the movement of some material. सेल के अंदर जो मटेरियल हैं वो बाहर ना जाएं, उसको भी वो प्रिवेंट करती है. सम मटेरियल विल नॉट मूव आउट ऑफ सेल, उसका भी वो ध्यान रखती है. इट इज़ वेरी थिन, इलास्टिक, लीविंग एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. इट इज़ वेरी थिन, इलास्टिक, living and selectively permeable membrane made up of lipids and proteins. It encloses nucleus and cytoplasm. Membrane के अंदर क्या होता है? Nucleus and cytoplasm. It helps in protection of cellular components. ठीक है, इसके बाद how does the movement of substance takes place into the cell? हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं या सेल से बाहर जो चीज़ें आ रही हैं वो कैसे इन एंड आउट हो रही हैं. ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज़ की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी, कोई भी चीज़ सेल से बाहर निकल आ रही है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सिलेक्टेड चीज़ों को ही एंटर करने दे रही है, और जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं वही सेल से बाहर आ पाती हैं. तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं? मेनली डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस for carbon dioxide, oxygen and other gases. Okay, some substances like carbon dioxide or oxygen move across the cell membrane by the process of diffusion. Diffuse हो जाता है. डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. Now it is the movement from higher concentration to the region where concentration is low. Movement high concentration से low concentration की तरफ होगी. Some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. Spontaneous movement होती है, high concentration से low concentration की तरफ होती है. It play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दो सेल्स के बीच में
या सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो उन दोनों ही केसेस में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है. ना gaseous exchange between the leaves and air takes place through diffusion. Transport of food through phloem also takes place. Loss of water from plant is based on the principle of diffusion, है ना. Movement of ions and solute from one cell to other can takes place through diffusion. All these are the significance of diffusion. यहाँ पर आपको CO2 का एग्जाम्पल लेके बताया गया है, जो कि सेलुलर वेस्ट है. जब इसको बॉडी से बाहर निकालना हो और बहुत मात्रा में एक्यूमुलेट हो गया है सेल के अंदर, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कम हो जाती है और सेल के अंदर जो है CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, यानी सेल से बाहर CO2, सेल से बाहर CO2 का डिफ्यूजन होगा. और ऑक्सीजन जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्योंकि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे चल रहा था तो O2 कम हो गया है. अब ऑक्सीजन इज एंटर्ड एंड CO2 इज गोइंग आउट. तो दिस exit and entry of CO2 and oxygen takes place on the basis of concentration. ठीक है. तो डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन हाई है या लो है, इस पर डिपेंड करेगा कि मूवमेंट जो है वो किस तरफ होगी. और इसी तरह वाटर भी इसी लॉ को फॉलो करता है. तो जब वाटर की बारी आती है तो उस केस में हम इसको डिफ्यूजन ना बोल के ऑस्मोसिस बोल देते हैं. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. तो वाटर की डेंसिटी क्या है, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वाटर किस तरफ मूव कर रहे हैं. Now osmosis is the movement of water molecule through a selectively permeable membrane, and osmosis takes place from the region of high water concentration to the region of low water concentration through a semi permeable membrane. तो हम क्या कह सकते हैं, osmosis is a special case of diffusion. इसका significance क्या है? Absorption of water by roots and root hair. Water move from one cell to another cell. It control the amount of water within the cell. It control various psychological activities like opening and closing of stomata, splitting of fruit due to over irrigation, and seed dispersal में भी ये काफ़ी हेल्प करता है. पर यहाँ पर हम इन सब के अलावा जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. में किस टाइप के सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते, किसी टाइप के सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो उसका सेल पर क्या इफ़ेक्ट होता है. ठीक है. किसी भी सेल को अगर एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा जाए तो उस पर उस मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होगा. उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. दैट इज़ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड hypertonic. In hypotonic solution, you can say if the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, यानी कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन या डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और सेल के बाहर की डेंसिटी जो है, वाटर की डेंसिटी जो है वो डिल्यूशन जो है वो कम है. एक तरह से हमने डिल्यूटेड सॉल्यूशन में डाला है. ठीक है. आउटसाइड सॉल्यूशन जो है वो डिल्यूट है. तो अब क्या होगा, सेल विल गेन वाटर, सेल विल गेन वाटर. और जब सेल वाटर गेन करेगा तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस. क्या बोलेंगे इसको? एंडोस्मोसिस. सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है.
और सेल जो है ऐसे सॉल्यूशन में सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। क्लियर? वाटर कंसंट्रेशन सेल की कम होगी और बाहर ज़्यादा होगी, वाटर डिल्यूट होगा ज़्यादा बाहर की तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे और जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड है, अगर एक्सटर्नल मीडियम और इंटरनल मीडियम सेम कंसंट्रेशन के हों तो जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर रहेगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो सेम रहेगी, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे में अगर वाटर एंटर करेगा तो उतना ही वाटर बाहर भी निकल जाएगा, और सेल जो है वो सेम साइज़ का रहेगा, उसके साइज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेल स्वेल अप हो रहा था, यहाँ पर वो इक्वल साइज़ का रहेगा। थर्ड जो मीडियम है हमारे पास, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ लेस आउटसाइड द सेल। ठीक है, इससे क्या होगा, सेल जो है वो वाटर लूज़ करेगा, और ऐसे में वाटर लूज़ करने से सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, और सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल श्रिंक हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है वो सेल से बाहर जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सेल्स को अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा। हाइपरटोनिक में डालेंगे तो वो श्रिंक होगा, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, और आइसोटोनिक में डालेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा, सेम साइज रहेगा। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज होगा वो अब आप समझ सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड हाउ प्लाज्मा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम one, or you can say one cell to other, or from its surrounding to cell. ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल वॉल। वी विल स्टार्ट विद other organelles in the next lesson. For today, thank you, have a good day.